Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, today we will explore the facts about the entitled theme, Stages of Human Development, with special reference to adolescence. जैसे कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया various characteristics of adolescence. Adolescence is being considered the age of crisis. इसे टीन एज भी कहा जाता है जो 12 ईयर्स से स्टार्ट होता है एंड एंड्स एट द एज ऑफ 20 ईयर्स. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है. द एडोलेसेंस एज इज स्टार्टेड फ्रॉम 12 ईयर्स एंड एंड्स एट 20 ईयर्स. इसके बावजूद भी और क्लासिफिकेशंस है. लाइक WHO की क्लासिफिकेशन जो है एडोलेसेंस टीन एज मानी जाती है जो स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ 10 ईयर्स एंड एंड्स एट 19 ईयर्स. एंड अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर अदर क्लासिफिकेशंस एज वेल, लाइक एडोलेसेंस विच स्टार्ट्स from 13 years and ends at 19 years. Here question is कि इतनी क्लासिफिकेशंस क्यों है? Actually, the concept of adolescence, I mean to say you puberty age or biological maturity, it is influenced by three dominant factors. पहला climate, second food, third is socio-economic conditions, and socio-economic conditions are the indirect factors. जिस कंट्री का क्लाइमेट हॉट होता है वहाँ पर चांस होते हैं बोथ बॉयज़ और गर्ल्स को अर्ली प्यूबर्टी अटेन करने की, और जिस कंट्री में फूड और सोशो इकोनॉमिकल कंडीशंस स्ट्रांग होती है वहाँ पर अर्ली प्यूबर्टी हो जाती है. दैट इज वाई आई मेंशन्ड कीपिंग इन व्यू दीज फैक्टर्स द concept of adolescence varies from region to region. In today's lecture, we will purely focus on various problems which are faced by the adolescents. As we know that adolescence is being called the rough and tough period of life. In other words, it is called the age of crisis. Due to rapid physical growth and development, it gives birth to the number of problems. जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर हम स्टैनली हॉल के प्रिज्म से देखेंगे, स्टैनली हॉल को फादर ऑफ एडोलेसेंस कहा जाता है. According to the Stanley Hall, adolescence is being considered the rough and tough period. इसमें एडोलेसेंट की ना सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट फास्ट होती है बट देयर इज आल्सो चेंज इन द इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल एस्पेक्ट एज वेल. इसे एज ऑफ क्राइसिस भी कहा जाता है because due to overall change in the adolescents, it puts certain pressures on them and finally leads the adolescents, both boys and girls, in the state of crisis. Now we will discuss major problems which are faced by the adolescents. Number one, identity crisis. An identity crisis is defined as a period of uncertainty or confusion in a person's life. The crisis occurs when a person's sense of identity becomes insecure and unstable. Identity crisis occurs during the teen age as young people try to establish a sense of self and their place in the world. For example, cultural, sexual, and career identity crisis. First prominent problem
which is faced by the adolescents. That is identity crisis. What is identity crisis? Identity crisis is basically that very problem in which adolescents try to achieve that, but they fail to attain that, or automatically failure in the life leads both adolescent boys and girls in the state of crisis. और जब adolescents क्राइसिस में चले जाते हैं, they become victim of psychological problems, especially sense of insecurity, fear, anxiety and depression. It is commonly found among the adolescents. इस एज ऑफ क्राइसिस में जहां पर एडोलिसेंट्स को आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, दे कंसिडर देमसेल्व्स सेंटर ऑफ द सोसाइटी और यूनिवर्स. एडोलिसेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स में इस तरीके के सोच विचार होते हैं, वो अपने आप को सेंटर ऑफ सोसाइटी कंसिडर करते हैं. यानी कि जो सोसाइटी है ये एडोलिसेंट से चलती है. अगर सोसाइटी में लॉज डिज़ाइन करने होंगे, वो चाहते हैं कि हमसे डिज़ाइन होने चाहिए. अगर एक परिवार की बात करेंगे, एडोलिसेंट्स परिवार में भी, अपनी फैमिली में भी अपने आप को सेंटर कंसिडर करते हैं, सबसे यानी कि यूनिक कंसिडर करते हैं, चाहे उनमें कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है या नहीं. वो कहते हैं हर कोई फैसला, हर कोई नॉर्म, हर कोई जो रूल एंड रेगुलेशंस है, हर कुछ सोसाइटी में एग्जिस्ट होती है, वो हमसे ही चलनी चाहिए, चाहे वो उसके लायक है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी को गवर्न करने के लिए लीडरशिप की ज़रूरत है और वो खुद चाहते हैं लीडर्स बनना, चाहे उनमें कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है लीडरशिप की या नहीं. That hardly matters for them. So we can say that this age is being called the age of identity crisis. एक एडोलिसेंट चाहता है कि कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन हासिल करना. If the adolescent fails to attain that very position, so automatically it makes the adolescents to become द विक्टिम ऑफ क्राइसिस. तो इसीलिए सेकेंडली हॉल का मानना है इसमें प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो एडोलिसेंट्स है वो क्राइसिस का शिकार ना हो जाए, उनमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप ना हो जाए. क्योंकि वंस एडोलिसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई, तो ऑटोमेटिकली वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के शिकार हो जाते हैं. उनमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है, उनमें डिप्रेशन और स्ट्रेस कॉमनली पाया जाता है. 3 किस्म की क्राइसिस एडोलिसेंट्स में पाई जाती है. एक कल्चरल, सेकंड सेक्सुअल एंड थर्ड कैरियर आइडेंटिटी क्राइसिस. कल्चरल मीन्स वो हर एक कल्चर का जो एस्पेक्ट है वो अपने आप के साथ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. यानी कि सोसाइटी का पूरा निज़ाम जो है वो खुद चलाना चाहते हैं. अगर अब सोसाइटी में उन्हें वो मकाम नहीं मिला, सोसाइटी ने किसी भी तरीके से उन्हें इग्नोर किया, ऑटोमेटिकली दैट इट लीड देम इन द स्टेट ऑफ क्राइसिस, इट पुशेस देम इन द स्टेट ऑफ क्राइसिस. जब उन्हें सोसाइटी इग्नोर करती है कि आप इस रोल के लिए फिट नहीं हो. एंड लाइकवाइज सेक्सुअल प्रॉब्लम इज द कॉमन प्रॉब्लम फाउंड इन द एडोलिसेंट्स. जब उनकी बायोलॉजिकल नीड एंड रिक्वायरमेंट सेटिस्फैक्ट्री वे में फुलफिल नहीं होती है, इसमें ब्लॉक्स खड़ा हो जाते हैं ड्यू टू वन रीजन एंड अनदर रीजन. इट ऑल्सो pushes the adolescents
both boys and girls in the state of crisis. And third is crisis related to the career. यानी कि वो कैरियर में एक्सीलेंस दिखाना चाहते हैं in terms of occupation, in terms of to get the highest status and position. For example, adolescent boy और girl चाहता है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर लूं, लेकिन वो उस एग्जाम को पास नहीं कर पाता है या उसमें उतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो पोजीशन उसे मिलनी चाहिए वो नहीं मिल सकी। चाहे वो फिल्म स्टार बनना चाहता है, सपोर्ट्समैन बनना चाहता है, किसी और आला ओहदे पे पहुंचना चाहता है, लेकिन जब वो फेल हो जाता है उस टारगेट को हासिल करने से, इट लीड्स देम इन द स्टेट ऑफ क्राइसिस. दैट इज व्हाई द फर्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एडोलेसेंट्स, that is identity crisis. An identity crisis may cause feeling of frustration, being stuck. Furthermore, an identity crisis can influence feeling of depression or anxiety, making people feel unsatisfied with themselves and their lives. Keeping in view the adolescence age, जिसे हम age of crisis भी कहते हैं, क्योंकि एडोलेसेंट्स में आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाते हैं और उन आइडेंटिटी क्राइसिस से वो अनसेटिस्फाई हो जाते हैं. अनसेटिस्फाई क्यों हो जाते हैं एडोलेसेंट्स? बिकॉज दे फेल टू अचीव देयर गोल्स. इसीलिए अनसेटिस्फैक्शन एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स में पाई जाती है, जिसकी वजह से कॉमनली इन एडोलेसेंट्स में डिप्रेशन और एंजाइटी पाई जाती है और उनका बिहेवियर जो है वो स्टक हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं. कीपिंग इन व्यू द स्टैनली हॉल्स स्टेटमेंट, इनको प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है ताकि उनका जो पोटेंशियल है वो सही तरीके से चैनलाइज हो जाएगा. उनमें जो कैपेसिटीज और कैपेबिलिटी है उनको प्रॉपरली गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जरिए शेप करना है. अदरवाइज दिस अनसेटिस्फैक्शन will give birth to the various dangerous problems. Number second, self-esteem. Self-esteem is that psychosocial need in which an individual tries to maintain the self-regard and self-respect. The most common cause of low self-esteem in teenagers are unsupportive parents, social disapproval, parental rejection, broken home condition, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बॉडी इमेज एटसेट्रा. जैसे कि हम सब जानते हैं, द सेकंड प्रॉब्लम विच इज फेस्ड बाय द एडोलेसेंट्स, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम वो सोशो साइकोलॉजिकल नीड है इन विच एन एडोलेसेंट ट्राइज टू मेंटेन द सेल्फ रिगार्ड एंड सेल्फ respect. Dear students, the common cause of low self-esteem among the adolescents, क्या एक्चुअली कारण है कि एडोलेसेंट्स में लो सेल्फ कॉन्सेप्ट, लो सेल्फ एस्टीम या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है? कॉमन कॉज इज द अनसपोर्टिव पेरेंट्स. Dear students, it has researchically proved that जिन बच्चों में यानी कि पेरेंटल रिजेक्शन हो जाती है, जो बच्चे पेरेंटल रिजेक्शन के शिकार हो जाते हैं, उनमें लो सेल्फ एस्टीम होती है एज कंपेयर टू दोज चिल्ड्रंस जिन्हें पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं. इसीलिए टीन एज में पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान एक गैप नहीं होनी चाहिए. इफ देयर इज द गैप इन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द एडोलेसेंट्स, सो इट गिव्स बर्थ टू द प्रॉब्लम ऑफ लो सेल्फ एस्टीम. इनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है. एंड अपार्ट फ्रॉम द सपोर्टिव और अनसपोर्टिव पेरेंट्स, देयर आर अदर कॉजेज
which are responsible for low self-esteem found among adolescents. That is social disapproval, broken home conditions. Social disapproval simply means अगर एडोलिसेंट बॉयज़ और गर्ल्स को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, उन्हें सोशल रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती है, चाहे घर की हम बात करेंगे, स्कूल की बात करेंगे या ओवरऑल सोसाइटी की हम बात लेंगे, तीनों जगहों में एक एडोलिसेंट बॉय और गर्ल की, आई मीन टू से यू जो टीन एजर्स है, उन्हें सोशल रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए। अगर पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स बच्चे को रिकॉग्नाइजेशन नहीं देंगे या टीचर्स टीन एजर्स को रिकॉग्नाइजेशन नहीं देंगे या हम ओवरऑल सोसाइटी की बात करेंगे, हर जगह टीन एजर्स को एक रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए और उस रिकॉग्नाइजेशन मिलने की वजह से वो बूस्ट हो जाते हैं, उनका मॉरल डेवलप हो जाता है, विच फाइनली डेवलप्स द सेल्फ एस्टीम, where the every adolescent boy or girl maintains the self regard and self respect. अगर उन्हें सेल्फ रिगार्ड और सेल्फ रेस्पेक्ट सोसाइटी से ना मिला, चाहे फैमिली है, स्कूल है, कम्युनिटी है या ओवरऑल कल्चर जो है, तो ऑटोमेटिकली इट पुशेस द एडोलेसेंट्स इन द स्टेट ऑफ साइकोलॉजी where they will become the victim of low self-esteem. Low self-esteem के और भी बाकी कारण हैं, like broken home condition, और बहुत मर्तबा हमने broken home condition के बारे में डिस्कस किया है। Broken home condition is that very condition in which there is the conflict or tussle between the parents, especially wife and husband. उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सिर्फ हस्बैंड और वाइफ पे असर नहीं पड़ता है, बल्कि बच्चों पे पहले असर पड़ता है। इसीलिए वो बच्चे जिनमें ब्रोकन होम कंडीशन होगी, यानी कि जो घर के मसलों में उलझे रहते हैं, एस्पेशली फैमिलियल डिस्प्यूट्स आर ड्यू टू वन रीजन एंड अनदर रीजन, इट हिट्स देयर साइकोलॉजिकल प्रोफाइल, एस्पेशली उनमें कॉन्फिडेंस भी लो पाया जाता है और सेल्फ एस्टीम भी उन बच्चों में लो पाई जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज रीजन्स दे स्टूडेंट्स देयर आर अदर फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लो सेल्फ एस्टीम. वन इज फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सेकंड इज बॉडी इमेज. फाइनेंशियल प्रॉब्लम मीन्स अगर इकोनॉमिकल क्रंच होगा, घर में गुर्बत होगी, तो रिसर्च के लिए ये प्रूव किया गया है, जो टीन एजर्स गरीब फैमिलियों से आते हैं, जिनमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो फाइनेंशियल क्रंच से उनका जो ओवरऑल पर्सनालिटी प्रोफाइल होता है वो बहुत वीक होता है। उन पुअर बच्चों में, पुअर टीन एजर्स में लो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लो सेल्फ एस्टीम पाई जाती है, एज कंपेयर टू दोज teenagers which comes from the rich families, जिन फैमिलीज में इकोनॉमिकल स्टेटस हाईली डेवलप्ड होता है, जो इकोनॉमी से वेरी मच साउंड होते हैं, और रिसर्च के लिए यह भी प्रूव किया गया है, उनका जो ओवरऑल पर्सनालिटी प्रोफाइल होता है वो साउंड और डेवलप्ड होता है। बॉडी इमेज इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ लो सेल्फ एस्टीम. बॉडी इमेज मीन्स जब एक टीन एजर अपने फिगरल को या ओवरऑल पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है, जैसे कि हम सब जानते हैं, देयर इज वन ऑफ द एमिनेंट सोशोलॉजिस्ट नेमली चार्ल्स हंटन कूली. चार्ल्स हंटन कूली ने कंसेप्ट दिया दैट इज नोन एज लुकिंग ग्लास सेल्फ, यानी कि वी परसीव आवर सेल्व्स थ्रू द आइज ऑफ द सोसाइटी. जब एक इंडिविजुअल मिरर के सामने बैठता है तो दो किस्म का कॉन्सेप्ट उसमें डेवलप हो सकता है, या पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट या नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट. अगर उसने आईने में अपने आप को खूबसूरत पाया है तो उसमें पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा. अगर एक टीन एजर ने
आईने के सामने अपने आप को अगली पाया है तो वो साइकोलॉजिकली बहुत वीक होगा, उसमें लो सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। इसीलिए बॉडी इमेज जो है इट आल्सो अफेक्ट्स द सेल्फ एस्टीम ऑफ एन इंडिविजुअल। जो अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं तो उनमें हाई सेल्फ एस्टीम होती है एज कंपेयर टू दोज जो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दैट इज वाई इट इज राइटली सेड बाई समवन, अपने मन में डूब के पाजा सुराखे जिंदगी, तू अगर मेरा ना बन सका तो अपना तो बन। बड़ी बात है कि अपने आप को एक्सेप्ट करना। बॉडी इमेज मीन्स जब एक एडोलेसेंट, चाहे हम एडोलेसेंट बॉय की बात करेंगे या टीनेजड गर्ल की बात करेंगे, अगर वो अपने फिगरल से खुश नहीं है, वो अपनी बॉडी इमेज को पसंद नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो साइकोलॉजिकली बहुत वीक होते हैं, उनमें कॉमनली लो सेल्फ एस्टीम पाई जाती है। द एडोलेसेंट्स आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग नेगेटिव बॉडी इमेज which finally results fear of rejection, anxiety, stress, isolation, and adjustment related problems. Number third, hero worship. Hero worship is an excessive admiration for someone and a belief that they are special or perfect. Adolescents have problem of hero worship as they refuse to believe that the hero might have any imperfection. The adolescents consider their heroes such as film stars, sportsmen, politicians. What is hero worship? Hero worship simply means excessive admiration for someone. जब ये हद से किसी पर्सन को पसंद करते हैं या उसकी तारीफ करते हैं तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं हीरो वर्शिप प्रॉब्लम। स्पेशली ये देखा गया है जो टीन एजर्स है, उनके आइडियल्स, उनके आइकन्स कौन होते हैं, या फिल्मी स्टार, सपोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिशियंस, और वी कैन ऑल्सो से दैट रिलीजियस गुरुज, जिन्हें ये परफेक्ट बीइंग्स कंसिडर करते हैं विदाउट फाइंडिंग ए सिंगल फॉल्ट। सो दिस टेंडेंसी इज नोन एज हीरो वर्शिप टेंडेंसी। अक्सर ये टेंडेंसी एडोलेसेंट्स में पाई जाती है। वो हद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अपने आइडियल्स को, अपने आइकन्स को, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो सपोर्ट्समैन है, चाहे वो फिल्म स्टार है, चाहे वो एनी रिलीजियस गुरु है। हीरो वर्शिप की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है दैट इट करप्ट्स द ब्रेन ऑफ एडोलेसेंट्स और इंडिविजुअल्स। ये कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन अक्सर बेशतर ये टीन एज में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। टीन एजर्स में ज़्यादा टेंडेंसी होती है हीरो वर्शिप की, यानी कि जब ये किसी पर्सन को चाहते हैं ये हद से ज़्यादा उसे चाहते हैं। जब ये किसी पर्सन को यानी कि तारीफ करते हैं ये हद से ज़्यादा उसकी तारीफ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एडोलेसेंट्स में ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है हीरो वर्शिप की प्रॉब्लम। ये अपने आइडियल्स को कोई भी फॉल्ट उनमें नहीं ढूंढते हैं, ये हर एंगल से उन्हें परफेक्ट समझते हैं, चाहे उनमें वो क्वालिटी है कि नहीं, चाहे वो उस स्टेटस के लिए फिट होते हैं कि नहीं, ये हर लिहाज से उन्हें यानी कि एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए टीन एजर्स का जो ब्रेन है वो करप्ट हो जाता है। उनका आइडियल जो है अगर वो इम्परफेक्ट भी होगा लेकिन फिर भी उसे ये परफेक्ट कंसिडर करते हैं। उनका आइडियल जो होगा अगर वो फुल ऑफ डिफेक्ट्स भी होगा तो फिर भी एडोलेसेंट जो है ये उसे डिफेक्टलेस मानते हैं। इन एवरी रेस्पेक्ट दे एडमायर देयर, आई मीन टू से यू, आइडियल। So that is why hero worship is the main problem which is faced by the teenagers. Dear students, अगर हम अब इस चीज़ को डेमोक्रेटिक प्रिज्म से देखेंगे, गुड गवर्नेंस के लिए हमें एक अच्छे इंडिविजुअल की ज़रूरत है, एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है। उसमें रियल सेंस में लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन एडोलेसेंट्स में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
ये अनकंडीशनली अपने लीडर को हीरो मानते हैं, ये इरेशनली उनके साथ एक अटैचमेंट रखते हैं। अगर उस लीडर में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इथिकल कंसर्न नहीं है, फिर भी एडोलेसेंट्स उसे अपना लीडर मानते हैं, परफेक्ट मानते हैं, विदाउट फाइंडिंग द सिंगल फॉल्ट इन द लीडर। सो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो सिस्टम है वो पूरा बिगड़ जाता है। इसीलिए थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विच इज फाउंड अमंग द एडोलेसेंट्स, दैट इज हीरो वर्शिप। नटशल में हम कह सकते हैं हीरो वर्शिप वो प्रॉब्लम एडोलेसेंट्स में पाई जाती है जिसमें ये अपने लीडर को यानी कि एक्सेसिव मैनर में एक्सेप्ट भी करते और उसकी एडमिरेशन करते हैं, चाहे उसमें वो कैपेसिटी है या नहीं है, चाहे वो उसके लिए कैपेबल है या न है। नंबर फोर्थ, बुलिंग। बुलिंग इज द अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम which is faced by the adolescents. Bullying is a form of harassment, verbal and physical, sometimes leading to self-doubt, depression and suicide. As the bullying continues, bullies use hurtful words and actions on purpose to discourage others. In other words, bullying is an illegal behavior towards a person that causes mental or emotional suffering, which includes insults, threats, pitiful or offensive language. There are the common bullying tendencies found among adolescents, such as physical bullying. Dear students, जैसे कि हम सब जानते हैं, बुलिंग कैरेक्टर जो है वो कॉमनली एडोलेसेंट्स में पाया जाता है। जब एडोलेसेंट्स एक दूसरे के साथ ऑफेंसिव या एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को वो थ्रेट करते हैं, या कोई और पर्सन भी हो सकता है जो एडोलेसेंट्स को बुलिंग करता है, और उस बुलिंग की वजह से उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज पाई जाती है। और बुलिंग जो है वो एक एडोलेसेंट को स्टेट ऑफ साइकोलॉजी में ले सकता है, where they commonly becomes victim of stress, depression and other types of psychological problems. Mental health related issues या emotional problems commonly bullying की वजह से adolescents में पाई जाती है, जब वो एक दूसरे के साथ offensive या वो harshful language इस्तेमाल करते हैं। There are various types of bullying. एक बुलिंग जो है दैट बुलिंग इज नोन एज फिजिकल बुलिंग। फिजिकल बुलिंग इंक्लूड्स हिटिंग, किकिंग, ट्रिपिंग, पिंचिंग, पुशिंग और डैमेजिंग प्रॉपर्टी। फिजिकल बुलिंग में मैन हैंडलिंग आती है जब एक एडोलेसेंट दूसरे एडोलेसेंट को फिजिकली हिट करता है, किक करता है, या वो फिजिकली किसी चीज़ को डैमेज करता है, या एक दूसरे के वो जब गिरेबान तक हाथ डालते हैं। इस बुलिंग को कहते हैं फिजिकल बुलिंग। नंबर सेकंड, वर्बल बुलिंग। डियर स्टूडेंट्स, वर्बल बुलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल बुलिंग। फिजिकल बुलिंग में वो एक दूसरे को हिट करते हैं, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हैं, लेकिन जो वर्बल बुलिंग है वहाँ पर वो ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, एक दूसरे को इंसल्ट करते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, हार्श वर्ड्स यूज़ करते हैं, हार्श लैंग्वेज यूज़ करते हैं, या एक दूसरे को थ्रेट वो करते हैं। दिस इज नोन एज वर्बल बुलिंग। थर्ड इज साइबर बुलिंग। Is a bullying with the use of electronic devices in order to send or share negative, harmful, false or mean content about someone else. Cyberbullying is that very bullying in which the adolescents share that type of information which makes to others feel embarrassment, humiliation, and which finally gives birth to the mental health related problems. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए यानी कि
फिल्थी कंटेंट सेंड करना, एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करना, ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स लिखना, हार्शफुल स्टेटमेंट्स लिखना, गाली गलौज करना, धमकियां देना. So that type of bullying is known as cyber bullying. Number 5th, drug addiction. Drug addiction is the worldwide problem. Especially teenagers are the main victims of drug addiction. जैसे कि हम सब जानते हैं, ड्रग एडिक्शन जो है ये वर्ल्ड वाइड या ग्लोबल प्रॉब्लम है. नंबर ऑफ टाइम्स हमने ऑलरेडी ड्रग एडिक्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब की है. और जो ये ड्रग एडिक्शन है इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं टीन एजर्स को विक्टिम बनने के, क्योंकि स्टैनली हॉल ने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है दैट टीन एज इज बीइंग कॉल्ड रफ एंड टफ एज. इसीलिए कि जो टीन एजर्स है वो विक्टिम बन जाते हैं, वो शिकार हो जाते हैं ड्रग एडिक्शन की. बोथ टीन बॉयज एंड गर्ल्स आर टेकिंग द ड्रग्स लाइक स्मोकिंग. वो स्मोकिंग के शिकार हो जाते हैं या स्मोकिंग के बगैर भी माराजुना, कोकाइन, ओपाइट्स, इनहेलेंट्स, पेन पिल्स, स्टिमुलेंट्स, एंजाइटी पिल्स वो लेते हैं. दीज आर द वेरियस डिफरेंट ड्रग्स जो एक्सेसिव यूज ये कर लेते हैं. अगर हम ग्लोबली देखेंगे, हर कोई सोसाइटी जो है जहाँ पर हमें ड्रग एडिक्ट्स मिल जाएंगे और कम तादाद भी नहीं पाई जाती है एडोलेसेंट्स की. एडोलेसेंट्स को भी मैक्सिमम चांसेस होते हैं ड्रग एडिक्शन के शिकार होने के लिए, इसीलिए कि प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द एडोलेसेंट्स और नंबर ऑफ. बट ड्रग एडिक्शन इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉब्लम which is faced by the adolescents. According to NCBI report 2010, in our country India, overall percentage of substance use among high school students was 12.5%. Drug addiction can harm adolescents in every walk of life. Dear students, so far as the NCBI report is concerned, ये रिपोर्ट 2010 का है. In our country India, एडोलेसेंट्स की परसेंटेज ड्रग एडिक्शन में 12.5% है. इट मीन्स इट इज राउंड अबाउट 14 करोड़ एडोलेसेंट्स वर इंडल्जड इन द ड्रग एडिक्शन. तो हमें यहाँ पर इस पॉइंट से ये चीज़ डिस्क्राइब होता है कितने चांसेस होते हैं एडोलेसेंट जो है वो कितने प्रोन है ड्रग एडिक्शन के शिकार होने के. ड्रग एडिक्शन कैन हार्म एडोलेसेंट्स इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ. इनकी लाइफ जो है ये असरअंदाज हर एक एंगल से होती है. एक्सेसिव सब्सटेंस एब्यूज कॉजेज लिवर डैमेज, लंग कैंसर, किडनी फेलियर, स्ट्रोक, मेंटल कंफ्यूजन, ब्रेन डैमेज एंड मेमोरी प्रॉब्लम्स. डियर स्टूडेंट्स, ड्रग एडिक्शन की वजह से जो टीन एजर्स होते हैं वो कम उम्र में लंग कैंसर के शिकार हो जाते हैं, उनमें लिवर डैमेज भी हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम इट ब्रेन डैमेज और मेमोरी लॉस भी होता है. ना सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के साथ उनकी सोशल लाइफ और जो एकेडमिक्स है वो पूरा दाव पे लग जाता है. दैट इज वाई वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल इन ऑर्डर टू हैंडल द एडोलेसेंट्स. जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी इमेज पे दिखाया गया है किस तरीके से एडोलेसेंट्स जो है ये इनहेलेंट्स लेते हैं या पिल्स का इस्तेमाल करते हैं या ये सिगरेट स्मोकिंग या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं और इन नशीली चीज़ों से या दवाई लेने से किस तरीके से इनकी ओवरऑल लाइफ जो है ये खराब हो जाती है. चाहे हम हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, सोशल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, क्योंकि ड्रग एडिक्शन से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कॉमनली एडोलेसेंट्स में पाई जाती है. स्पेशली एंजाइटी एंड डिप्रेशन इज रिजल्ट ऑफ द ड्रग एडिक्शन. अपार्ट फ्रॉम द बायोलॉजिकल एलिमेंट्स लाइक lung cancer, liver damage, brain damage या psychological problem like memory loss which is commonly found among the adolescents. Number 6, a mood swing is a sudden or intense change in emotional state. During a mood swing,
A person may quickly switch from feeling happy and upbeat to feeling sad, irritable, or angry. Another important problem faced by the adolescents, that is mood swing. Mood swing simply means एक इमोशनल स्टेट से दूसरे इमोशनल स्टेट तक पहुंचना, दैट इज नोन एज मूड स्विंग। यानी कि इमोशंस में फ्रीक्वेंट चेंज आना। फॉर एग्जांपल, एक एडोलेसेंट हैप्पी महसूस करता है, लेकिन जो ही उसने हैप्पीनेस महसूस की तो उसका मूड जो है वो चेंज हो जाता है, जल्दी तुरंत चेंज आ जाती है, वो सैड और ग्लूमी महसूस करता है। यानी कि एक इमोशनल स्टेट से दूसरे इमोशनल स्टेट तक, स्पेशली फ्रॉम हैप्पीनेस टू द ग्लूमीनेस, एक एडोलेसेंट पहुंच जाता है, दैट इज नोन एज मूड स्विंग। मूड स्विंग इज द कॉमन प्रॉब्लम फाउंड इन एडोलेसेंस स्टेज। Dopamine, one of the neurotransmitters in the brain, controls the ability to experience pleasure and pain. During adolescence, there is a dopamine deficiency, which also contributes to extreme mood swings and difficulty in regulating emotions. The mood swings that teens experience are caused by fluctuations in estrogen, progesterone, and testosterone sex hormone. Dear students, मूड स्विंग की प्रॉब्लम कॉमनली एडोलेसेंस में पाई जाती है। देयर आर द वेरियस कॉजेस, और उनमें से एक फंडामेंटल कॉज ये भी है, दैट इज बायोलॉजिकल कॉज। क्योंकि एक इंडिविजुअल के ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर बेसिकली द केमिकल substances which carry the message from one nerve cell to the another nerve cell. और एडोलेसेंस एज में स्पेशली क्या हो जाता है, देयर इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज नोन एज डोपामीन। डोपामीन के बावजूद भी और न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, लाइक सेरोटोनिन, एपिफेराइन। These are various chemical substances which carry the message from one nerve cell to the another nerve cell. और एडोलेसेंस पीरियड में डोपामीन की डेफिशिएंसी एडोलेसेंट्स में पाई जाती है, जिसकी वजह से उनमें मूड स्विंग होता है। अपार्ट फ्रॉम द न्यूरोट्रांसमीटर्स, सेक्स हार्मोन्स आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मूड स्विंग। यानी कि किस तरीके से एडोलेसेंट्स और टीन एजर्स हम कह सकते हैं उनमें मूड स्विंग होता है। देयर इज द रोल ऑफ सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन, ये वो सेक्स हार्मोन्स है विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूड स्विंग इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। जब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन की सेक्रेशन लो पड़ जाती है, ऑटोमेटिकली जो टीन एजर्स होते हैं उनमें मूड स्विंग होता है। ना सिर्फ मूड स्विंग होता है, बल्कि दे लीड इन द साइकोलॉजिकल स्टेट where commonly depression, stress, anxiety are found. Number 6, adjustment problems. Adjustment problem is that problem in which adolescents fail to accommodate or adjust in the society. ये कूप आप सोसाइटी में नहीं कर पाते हैं, ये सोसाइटी में एडजस्ट और एकोमोडेट नहीं हो पाते हैं। प्रॉब्लम इज ड्यू टू द हार्मोनल चेंज, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्योंकि जो एडोलेसेंस एज है इसमें रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। इसमें सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स स्पेशली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन की मकदार ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल पर्सनालिटी प्रोफाइल है वो एडोलेसेंट्स का चेंज हो जाता है। उनमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है दे फेल टू एकोमोडेट इन द सोसाइटी। उन्हें एडजस्ट कर पाना किसी सिचुएशन में बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन उन्हें लगता है। और अपार्ट फ्रॉम हार्मोनल चेंजेस, आई मीन टू से यू बायोलॉजिकल फैक्टर्स, देयर आर अदर फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स लाइक लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। अगर एडोलेसेंट्स में गुर्बत होगी
फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी। वो लोअर क्लास सोसाइटीज से आते हैं, यानी कि इसीलिए रिसर्चिकली इट हैज़ प्रूव्ड दैट जो बच्चे गरीब फैमिली से आते हैं, जो बैकवर्ड एरियाज से आते हैं, जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टेबल नहीं है, उनमें एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है। दे फेल टू अकोमोडेट और एडजस्ट इन द सोसाइटी एज कंपेयर टू दोज चिल्ड्रन और दोज टीनएजर्स विच कम्स फ्रॉम हाई सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस, जिनका हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, जो रिच फैमिली से आते हैं, उनमें एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ज़्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू द पुअर टीनएजर्स। एंड ऑल्सो ब्रोकन होम कंडीशन, पेरेंटल रिजेक्शन। हमने ऑलरेडी डिटेल्ड अकाउंट दिया है कि ब्रोकन होम कंडीशन वो कंडीशन है व्हेन देयर इज फैमिली डिस्प्यूट्स, स्पेशली द क्वारल और टसल बिटवीन हस्बैंड एंड द वाइफ, जिसकी वजह से वहाँ पर बच्चों पे असर पड़ता है। अगर किसी भी कारण से फैमिलियल डिस्प्यूट्स होंगे, पुअर्टी की वजह से प्रॉपर्टी का इशू होगा, या मियाँ और बीवी के दरमियान आपस में झगड़ा होगा, और उनका असर डायरेक्टली बच्चों पे पड़ता है। देयर स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम स्कूल, सोसाइटी एंड होम, देयर आर अदर रीजन्स फॉर द माल एडजस्टमेंट ऑफ द टीनएजर्स, दैट इज पेरेंटल रिजेक्शन एंड बॉडी इमेज। पेरेंटल रिजेक्शन मीन्स व्हेन द पेरेंट्स विल नॉट एक्सेप्ट द चाइल्ड, जब पेरेंट्स अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसकी वजह से जो टीन एजर्स होते हैं, आई मीन टू से चिल्ड्रन जो होते हैं, वो सेल्फ डाउट के शिकार हो जाते हैं। आखिर वजह क्या है? मुझे पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चाहे वो मदर होगी चाहे वो फादर होगा, तो सेल्फ डाउट के वो शिकार हो जाते हैं। वन ऑफ द एमिनेंट ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, नेमली अब्राहिम मास्लो, अब्राहिम मास्लो ने ऑलरेडी एक थ्योरी दी है, दैट थ्योरी इज नोन एज नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। उसमें एक नीड है जिसको हम कहते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड। लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड इज दैट वेरी नीड इन विच इंडिविजुअल ट्राइज टू लव अदर्स एंड वांट्स टू बी लव्ड। सो अगर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को लव करता है तो वो प्रॉपर रेस्पॉन्स वहाँ से भी हासिल करना चाहता है। सपोज बच्चा पेरेंट से लव करता है, लेकिन बच्चा जो है वो रेस्पॉन्स भी प्रॉपरली उनसे चाहता है टू बी लव्ड। अगर वहाँ पर पेरेंट्स ने रिजेक्शन दिखाई है तो उसकी वजह से जो बच्चा है वो आइसोलेशन का शिकार हो जाएगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएगा, और ओवरऑल वो माल एडजस्टेड बन जाएगा। इसीलिए देयर लाइज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन स्टेक होल्डर्स, चाहे हम पेरेंट्स की बात करेंगे, टीचर्स की बात करेंगे, या सोसाइटी मेंबर्स की बात करेंगे, दैट दे हैव प्रॉपरली डील विद द टीनएजर्स, ताकि ये रिजेक्शन के शिकार ना हो जाए। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss another important topic, that is guidance and counseling for adolescents. If you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.